Good morning and Jai Hind, children. How are you? I hope you all are fit and fine. Children, in our last class, we have started our chapter Media and Democracy, right? And under that, we have studied one case study, role of media in democracy, and objectives of the media. These were the topic which we have discussed in our previous class, right? And today we are going to discuss the rest of the topic. And by today we will complete this chapter. Okay? So today we will be discussing social responsibility, basic ethical principles. So these are the topic which we will discuss today in this class. Right, children? So children, everyone, please open your textbook and carry one pencil in your hand so that if some words or lines are important, so that you can mark it in your book as well as note down in your rough copy. Okay? Or if some word or me is not clear to all of you, you can ask during the timing allotted to all of you. Okay, children? And today, children, I will show you the flow chart, and that flow chart I will share in the WhatsApp group also. So that flow chart you write in your fair notebook on the left hand side. Okay, on a white page you are going to note down that with good handwriting, and even you can color it also. And even today, by today only, I will share all the question answers, all book exercises, objective question also, as well as question answer also, so that you can write. Okay, children? So in WhatsApp group, you can check and you can note down. So children, just wait for a while. I am sharing the screen. Yes. So children, our chapter number is 5, Media and Democracy. Right, children? See, this is the flow chart, right, which you will note down in your fair copy. So, media and democracy. First point is role of media in democracy. Second is objectives of the media. So these two topics we have already discussed, right? And today we will be discussing social responsibility and basic ethical values, right? So social responsibility and these two topics we will be discussing today. So children, just wait for a while. Yes. So, children, now we will start our today's class and we will be discussing these two topics. Okay, children? See, now, children, first we will revise for few minutes. Now, what is media, children? We have seen that media is a line of communication between the government and the people, right? तो मीडिया क्या करती है, हम तक जो है इंफॉर्मेशन लेकर आती है, राइट? मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, ओके, क्या सही काम कर रही है वो भी हमें बताए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन दे, राइट? तो ये सारी चीज़ें, तो मीडिया को क्या, और मैंने कहा था चिल्ड्रन, इट इज द फोर्थ पिलर, राइट, ऑफ डेमोक्रेसी. And we have discussed the three pillar also, that is legislature, executive and judiciary, and the fourth pillar is the media. And media is also having huge power in his hand. It can help to promote the right things on right time. Okay, तो ये मीडिया ऑल्सो प्रमोट चल रहा है कि सही समय पे हमें सही चीज़ें जो है, सही न्यूज़, रियल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट कवर करे, सारी चीज़ें जो इंफॉर्मेशन है पूरे वर्ल्ड के बारे में हमें बताए, what is right, what is wrong, and also it express that how we can store and distribute the views. ठीक है, तो हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, and then it also express children and that how we can store, हमें किस तरीके से सारी चीज़ें स्टोर करनी चाहिए, and distribute the views, फिर उसके ऊपर
क्या डिसीजन है हमारा, क्या एक्शंस हम जो लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे अगर कुछ भी हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है, कुछ भी चीज़ें घट रही, कुछ इवेंट, कुछ जो भी चीज़ें हो रही है, तो अगर कुछ न्यूज़ आती है तो वो रियल होनी चाहिए, राइट, कि हमें जो राइट चीज़ें हमारे पास पता चले। Next, see children, different types of media we have seen, right? So, for example, radio, television, magazine, newspaper, internet, and nowadays social media also. So, right, these are the different forms of media by through which we get the lots of information about the surrounding, about the whatever is happening. Okay, around the world, everything we come to know with the help of this media. All the information is provided with the help of this media only. Next, see, media responsibility. Media की क्या responsibility है society की प्रति? Okay, so the content of media should reflect whatever the media, okay, जो भी चीज़ें वो लिख रही है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, इट शुड बी ट्रूथ, ओके, एक्यूरेसी, इट शुड बी परफेक्ट, ऑब्जेक्टिव, उनका कुछ पर्पस होना चाहिए, राइट, मोटो होना चाहिए कि वो हमें राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, एक बैलेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो चीज़ें सही हो रही है या कुछ भी गलत हो रहा है वो हमें पूरे इंफॉर्मेशन दें। ऐसा नहीं है कि केवल हमें वन साइडेड चीज़ें हमें बताए किसी भी इवेंट के बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। It should be self-regulating within the framework of law. So that means what children? कि जो भी लॉ में लिखा हुआ है, राइट, उसके अकॉर्डिंग उनको उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि वो उसमें काम करे। मीन्स वो एक इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए, किसी से डरे ना, राइट, किसी के दबाव में आके वो कोई ऐसी न्यूज़ ना छापे। तो उनको जो मॉरल वैल्यूज़ है वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ उनको फंड दे दिया या कुछ हो गया तो वो गलत न्यूज़ छापे, राइट, मीन्स किसी के फेवर में आ जाए या किसी के अगेंस्ट जाकर वो ऐसे कुछ न्यूज़ छाप दे कि जिससे लोगों को हार्म हो। तो इस तरीके की चीज़ें उनको नहीं करनी है, राइट। एंड एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन, इट शुड अवॉइड वॉट एवर दैट माइट लीड टू क्राइम, या कुछ भी चीज़ें जो मीडिया को अवॉइड करनी चाहिए जो क्राइम से रिलेटेड हो, ओके, जो अपराध जिसको हम बोल सकते हैं, राइट, उसको बढ़ावा नहीं देना है, राइट, वायलेंस, हिंसा, राइट, तो ये सारी चीज़ें, या सिविल डिसऑर्डर, जो सिविल अनरेस्ट होता है, राइट चिल्ड्रन, जो सोसाइटी में जो रिलीजन से रिलेटेड जो दंगा फसाद होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, ये सारी चीज़ों को मीडिया को जो है उनको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और गिव ऑफेंस टू माइनॉरिटी ग्रुप, ओके, सो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फेवर करें, राइट, ये सारी चीज़ों से मीडिया को जो है दूर रहना है, ये सारी न्यूज़ उनको अवॉइड करनी है, राइट, जो चीज़ें सही हो रही है, रियल, एक्यूरेट, परफेक्ट, वही हमें बताए, राइट, ना कि किसी भी कहने पे वो हमें बढ़ा चढ़ाकर कोई भी चीज़ हमारे सामने ले आए, ये काम मीडिया को नहीं करना है। Now see, reality of media as an industry, right? Now to stay in the competition, अब मीडिया को कंपटीशन में रहना है, राइट, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हो गए, राइट, तो अभी उनमें भी कंपटीशन होते हैं कि सबसे अच्छे जो न्यूज़ कहाँ, चैनल कौन से हैं, कौन सबसे ज़्यादा न्यूज़ कवर करके ला रहा है, ये सारी चीज़ें, राइट, तो उनमें भी क्या होता है, कंपटीशन लगी होती है, राइट, तो वो भी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, राइट, वो सारी चीज़ें। सो मीडिया हैज स्टार्टेड प्रमोटिंग अनएथिकल कंटेंट, ओके, सो अनएथिकल चिल्ड्रन, ये मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड नहीं है, उसके अगेंस्ट जाकर वो लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि एक ये इंडस्ट्री की तरह हो गया है, राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज स्टार्टेड सर्विंग एडवर्टाइजर इंटरेस्ट more than the interest of the common man, right?
अभी क्या हो रहा है चिल्ड्रेन, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे भी हर थोड़े थोड़े समय पे क्या होता है चिल्ड्रेन, एडवर्टाइजिंग होता है, राइट। तो ये एडवर्टाइजिंग में दिखाने के लिए जो होते हैं उनको न्यूज़ चैनल वालों को पैसा दिया जाता है, राइट, कि आप ये एडवर्टाइजमेंट दिखाएं। तो इसके एडवर्टाइजिंग दिखाने के लिए भी काफ़ी पैसे देने होते हैं, ऐसी एडवर्टाइजिंग। तो ये क्या हो गया चिल्ड्रन, एक बिजनेस हो गया है, राइट। तो अभी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ना कि जो लोगों का जो कॉमन मैन है वो क्या चाहते हैं वो नहीं उतना दिखाया जा रहा है, जो कि ज़्यादा प्रेफरेंस आजकल ये सारी चीज़ों को दिया जा रहा है, राइट। Page 3 journalism and other inflammable content. ओके, इन्फ्लेमेबल चिल्ड्रेन जैसे सेट ऑन फायर, जो आग की तरह कोई भी जो न्यूज़ होती है वो फैलती है ना, सनसनी खबर, राइट, उसको कहते हैं। और पेज 3 जर्नलिज्म क्या होता है चिल्ड्रेन, आपने पेज 3 सुना होगा, राइट, जिसमें हाई क्लास हाई सोसाइटी के लोग, बॉलीवुड स्टार्स, मॉडलिंग से रिलेटेड लोग, जो पार्टीज वगैरह शामिल होते हैं, राइट। तो इस तरीके के, तो ये सब भी न्यूज़ कवर की जाती है, राइट, किसी वेल नोन पर्सन के बारे में छापना। आजकल तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको सुनने के लिए मिलती होगी, राइट चिल्ड्रन। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि ज़्यादातर ये सारी चीज़ों को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। तो इस तरीके की न्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है आजकल। दैट मीन्स अदर इन्फ्लेमेबल कंटेंट हैव स्टार्टेड गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस नाउअडेज। So ad manager role has become more important, right? So जो advertisement जो manager होते हैं, he has become more and more important nowadays rather than the role of news editor. So children, have you understood this? Now let's see what are the suggestion. Okay, as a social institution, media should not forget its responsibility. उनको कभी नहीं भूलनी चाहिए कि उनकी responsibility क्या है towards the society. ठीक है, सोसाइटी के प्रति उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको ये हमेशा याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई हाई क्लास की पर्सन के अगर किसी ने कुछ उनको फंड प्रोवाइड कर दिया है, किसी तरीके से हेल्प कर दिया या किसी से डर कर, तो ऐसी सारी चीज़ें उनको नहीं करनी है। मीडिया को इंडिपेंडेंट रहना है, राइट। As an industry, it also has a certain social obligation. It is also having certain rules, regulation that it has to follow, and it also act as a watchdog. It always keep a check of a society. It should always try to keep the trust of the people. वो हमेशा लोगों का ट्रस्ट जीते, मेंटेन करके रखे। ऐसा नहीं है कि लोगों का विश्वास ही उठ जाए मीडिया से, राइट। तो लोगों तक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको एक बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इवन एज एन इंडस्ट्री, पीपल ट्रस्ट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल। सो इवन एज अ इंडस्ट्री भी क्या होना चाहिए, लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए, राइट, जो बहुत ही ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल। सो देर इज़ अ नीड ऑफ चेंज इन द एटीट्यूड। इवन हमारी जो थिंकिंग है, ओके, उसमें भी लोगों को चेंजेस लाएं। जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं, वो सारी चीज़ों में लोगों को पॉजिटिव वे में सारी चीज़ों को देखना है, ओके। नाउ चिल्ड्रन, आई एम शेयरिंग द टेक्स्ट बुक स्क्रीन, राइट। So now with the help of this book, okay, we will discuss now in detail. Now see, the media has an enormous means what children, a huge responsibility media has to perform, okay। तो मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, okay। Besides its duty to provide an accurate and detailed account of event. Accurate means what children? Perfect, exactly information. Okay, हर एक इवेंट्स के बारे में, हर एक हैपनिंग्स के बारे में कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ओके। और नेक्स्ट दूसरी चीज़ें क्या है चिल्ड्रेन, द मीडिया शुड ऑल्सो प्रोवाइड अ फोरम फॉर पीपल टू शेयर देयर व्यूज एंड आइडियाज। What do you mean by forum children? That means a platform, okay, an assembly, a meetings, जहाँ पे लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके, अपने आइडियाज को लोग एक्सप्रेस कर सके। इट शुड uphold the values of the society, right? Uphold, it should support, it should maintain the values. What are the values children? Liberty, such as liberty, equality, fraternity,
जस्टिस। सो ये सारी चीज़ें मीडिया को क्या है चिल्ड्रेन, इट शुड सपोर्ट। ये सारी चीज़ें लोगों को याद रखनी है, मीडिया को याद रखना है, उनके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, राइट, उस हिसाब से उनको सारे काम करने हैं। Dealing with the power of information, some media firms may become a center of economic and political powers. Right, children? तो अब जो हमने देखा चिल्ड्रन, रोल ऑफ मीडिया एज ए इंडस्ट्री, जो हमने देखा राइट, कि आजकल ये एक बिजनेस सेंटर बनते जा रहा है, राइट। सिर्फ कोई किसी से उनको फंड मिल जाए या जो है, तो कोई किसी के फेवर में चला जाता है या किसी के अगेंस्ट होके जो न्यूज़ जो छाप देते हैं, तो उस तरीके से उनको नहीं करना है, राइट। उनको एक जो राइट चीज़ें हैं वो बतानी है। ऐसा नहीं है कि किसी के भी फेवर में या किसी के अगेंस्ट में जाके कोई भी चीज़ें छाप दे। सो इन सच केसेस दे आर लाइकली टू प्लेस ए प्राइवेट इंटरेस्ट एंड अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होगा चिल्ड्रेन, लोग अपना प्राइवेट इंटरेस्ट देख रहे हैं, राइट, जो बिजनेस सेंटर्स होते हैं, ओके। और जो लोगों का इंटरेस्ट है वो क्या है चिल्ड्रेन, वो उतना मेंटेन नहीं रह पा रहा है, लोग उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर अभी लोग किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं चिल्ड्रेन, जो प्राइवेट इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो हमने एडवर्टाइजिंग वगैरह देखा, राइट। देयर इज अ नीड टू रेगुलेट द मीडिया, ओके, सो दैट इट गिव्स प्रायोरिटी टू पब्लिक इंटरेस्ट। रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करके रखे, राइट, जिससे वो हम लोग को प्रायोरिटी किनको दिया जाए चिल्ड्रेन, पब्लिक इंटरेस्ट। लोग क्या चाहते हैं, लोग किस तरीके का न्यूज़, जो चीज़ें चल रही है सोसाइटी में, उनके पास सही न्यूज़ पहुँचे, तो उनको मीडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है, पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट अ प्राइवेट इंटरेस्ट, ओके। फॉर दिस मीडिया हैज़ evolved a set of principles, okay, a code of conduct for itself, okay। इसीलिए क्या किया गया चिल्ड्रेन, कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स व्हाट चिल्ड्रेन, सम रूल्स रेगुलेशन सेट किए गए हैं। वेट अ मिनट चिल्ड्रेन, जस्ट वेट, यस। तो उनको ही कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, सेट किए गए हैं कि वो उनको फॉलो करने हैं। दे हैव टू वर्क अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ अ लॉ, ओके। लॉ के हिसाब से सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी है, उनका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। दे शुड नॉट ब्रेक दैट। मॉरल प्रिंसिपल, जो मॉरल वैल्यूज़ है उस पर उनको ध्यान देना है। नाउ बेसिक एथिकल वैल्यूज़, एथिकल मीन्स व्हाट चिल्ड्रेन, यू कैन से मॉरल प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या क्या चीज़ें सही हो रही है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, स्टेट में, वो सारी चीज़ें, और या कुछ गलत है। सो एथिकल मीन्स द मॉरल प्रिंसिपल, राइट। सो द मीडिया शुड एम टू सीक थ्रू जो सही चीज़ें हैं, राइट, ट्रूथ, फैक्ट, रियल फैक्ट, और हम तक पहुंचाए, रिपोर्ट करें, ओके। मिनिमाइज हार्म, लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट, लोगों को तकलीफ ज़्यादा ना पहुंचाएं, राइट, लोगों को हर्ट ना करें, लोगों को पेन ना दें। एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी फियर, ओके। मीडिया को क्या है, इंडिपेंडेंटली काम करना है, किसी के प्रेशर में, किसी में नहीं आना है, किसी के दबाव में नहीं आना है, राइट। एंड बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, रेस्पॉन्सिबल, ओके, आंसरेबल। मीडिया क्या होती है चिल्ड्रन, हमेशा लोगों को आंसरेबल होती है, राइट। गुड फेथ विद द रीडर इज द फाउंडेशन ऑफ गुड जर्नलिज्म, राइट। गुड फेथ विद द रीडर विद गुड फाउंडेशन मीन्स चिल्ड्रन, अभी हम तक जो न्यूज़ सारी चीज़ें जर्नलिज्म ही लाते हैं, राइट, जो रिपोर्टर होते हैं वो कवर करते हैं, राइट, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो हम तक सारी न्यूज़ पहुंचाते हैं, राइट। तो वो उनकी ड्यूटी बनती है, वो आंसरेबल है कि वो हम तक जो रियल फैक्ट है, पूरी इंफॉर्मेशन है, वो हम तक पहुंचाएं। गिव ओनली रिपोर्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ओके चिल्ड्रन, और ना कि वन साइडेड इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएं। So journalists should be able to operate with autonomy, which means children the freedom to act accordingly. Okay, autonomy means independent. Okay, which means the freedom to act accordingly to one conscience. हमारी समझदारी से, okay children, what is right, what is wrong, हमारा जो sense of right होता है, okay, समझ के, and professional
जजमेंट। ऐसा नहीं कि किसी के भी प्रेशर में आ जाए, हम किसी से डर जाए और अपना जो ओपिनियन है जो हमें छापना चाहिए वो हम ना दिखाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए प्रोफेशनल जजमेंट। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। अगेन आई एम टेलिंग, अकाउंटेबिलिटी मीन्स responsible, okay, which means one fulfills his or her responsibility। मीडिया को क्या करना है चिल्ड्रन, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनके शोल्डर पे वो उनको निभानी है बराबर तरीके से, राइट। is having an enormous power, huge power he is having in his hand. So that is why he is called as fourth pillar of democracy, right children? So, and impartiality means children, partiality means what children? किसी को फेवर करना, right? And opposite of partiality is what children? Impartiality, right? So हमें किसी के फेवर में नहीं रहना है, हमें किसी को फेवर नहीं करना है, okay? So which refers to not favoring one side or the other. If media establishment are financially dependent on political parties or business houses, okay, जो मीडिया है हाउस चैनल, अगर वो फाइनेंशियली डिपेंड हो रही है किस पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे या बिजनेस हाउस पे, राइट, सो दे मे नॉट हैव द फ्रीडम टू ऑपरेट दे एज और टू। तो जिस तरीके से मीडिया को काम करना चाहिए वो उस तरीके से काम नहीं करेगी अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी बिजनेस हाउस, बिजनेसमैन के कहने में आ जाए तो, राइट, ऐसा नहीं है, ओके। उनको अपना डिसीजन सेपरेट रखना है, ओके। सेपरेशन, इट शुड बी सेपरेशन ऑफ न्यूज़ फ्रॉम ओपिनियन। ओपिनियन एक अलग होता है, राइट। ऐसा नहीं कि हम किसी के भी कंट्रोल में आ गए या किसी ने हमें डरा दिया, धमका दिया तो जो है हम करेक्ट न्यूज़ लोगों तक ना पहुंचाएं, ऐसा नहीं करना है। ओपिनियन एक अलग चीज़ है और एक बिजनेस अपनी अलग चीज़ है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल अपने बिजनेस पर्पज से या कुछ ऐसी चीज़ें हमें लोग ऐसा नहीं करना है। अगर हम किसी पे डिपेंडेंट हो गए तो मीडिया अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी, हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाएगी। सो देयर लॉयल्टी एंड अकाउंटेबिलिटी विल बी टुवर्ड्स दिस पार्टी, राइट। अगर वो इन पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज या बिजनेस हाउस पे अगर मीडिया डिपेंड हो जाती है तो क्या लॉयल्टी मेंटेन रह पाएगी चिल्ड्रन? मॉरल जो वैल्यूज है वो मेंटेन रह पाएगी? वो नहीं रह पाएगी, राइट। दैट विल बी नॉट मेंटेन टुवर्ड दिस पार्टीज and not towards the public. So this hampered the media responsibility towards the society. So what do you mean by hamper children? ये बाधा बन जाएगी, right? रुकावट आ जाएगी. It will create obstacle, hurdle. So the media responsibility towards the society. जो मीडिया की जो responsibility है सोसाइटी के प्रति, वो अपना काम उतनी ईमानदारी से, उतनी सच्चाई से वो अपना काम, सारा काम नहीं कर पाएगी, राइट। अगर वो मीडिया हाउस किसी पे भी डिपेंडेंट हो जा रही है फाइनेंशियली, उन्हें इंडिपेंडेंटली अपना काम करना है। सो चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे? यस चिल्ड्रन, जस्ट वेट। नाउ सी चिल्ड्रन, sum up. The media gives children, this also you can note down in your rough notebook, fair notebook. Okay, on left hand side only. First you will copy down flow chart on left hand side. Then after that on a next page, on a white page only, you will note down this sum up. But you give the heading important points to remember. So the media gives a wide range of opinions and analyzes on important issues, right? तो हमें एक wide range of opinions भी हमें बताती हैं और हम it also analyze, that means it examine, it इंस्पेक्ट कि जो है चीज़ें हो रही है, जो है वो सही है कि नहीं। अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम तक मिले, राइट। उसको वो अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करे सारी चीज़ें को। The media has an enormous social responsibility. So the media is having a huge responsibility, right? So it should uphold the values of the society. So it should support the values which we have seen, that liberty, equality, fraternity, justice, all this value the media should support. Okay, it should work according to this. Good journalism should follow certain ethical principles. So
when the person will be called as good journalism, children, when he will follow all these moral principles, right? When he will give a correct information, accurate information, real as well as strong information to us, to everyone, right children? And see children, now see, your book exercise is also there. Now the what will be the answer children? Now we will discuss this book exercise. Okay, now you give me the answer. The media promotes a dash in public life. What will be the answer children? Yes, the media promotes the dash. So the media, what will be the answer children? Accountability, right? Accountability means what children? The media is responsible towards the public life, right children? The media is the principal source of dash and dash. What children? What will be the answer? Principal source of what? Yes, so political information, right? So he will give the political information and it will conduct the public debate. Children, आपने न्यूज़ चैनल खोल के देखा होगा, राइट? जो डिबेट होते हैं, राइट, पार्टीज के बीच जो लोग बैठकर पार्लियामेंट में जो सारी चीजें जो डिस्कस होती है, राइट, वो. नेक्स्ट, द मीडिया हैज evolved a set of dash or dash for itself. What will be the answer children? उनको क्या करना है, राइट? What media has to follow children? A set of principles and code of conduct, right, for itself. Within a framework of law they have to work, right? So that means he has to set a principles and code of conduct. So this is the correct answers. Dash means that one fulfills his or her responsibility. When the word responsibility is there, then children, what will be the correct answer? That means the media is accountability, right children? So again the same answer, accountability, right? So children, have you understood whatever we have discussed? Okay, fine. So in short we will discuss this also, how the media protect the democratic interest of the people children. The media children give expert opinion to the public, right? It explain the flaws, that means the error in the existing system to the people and make it easier for people to make then intelligent decisions. This is how the media children protect the democratic interest of the people. Now we list 4 objectives of the media. So children, in your book there are many objectives, right? So you can write any 4 objectives, and the which question answers which I am going to provide, in that also I have mentioned 5. So you can note down any 4. So which are the 4 objective children? That means separating of opinion from news, separating news and business interests, then not providing partial account of interest, giving only reports that are based on facts, and avoiding sensationalization and distortion of news. So all these things. So all these things comes under the objectives of the media. Right children? And what is the social responsibility of the media children? Right now only we have seen that the media children has an enormous responsibility. It is duty to provide accurate and detailed account of event, and the media should also children provide a forum for people to share their views and ideas, right? And it also uphold what children? Values of the society. So this is the answer of long answer first. And now journalists should be able to operate with impartiality, right children? And what do you understand by this statement? That means journalist children should be able to operate with impartiality. That means it should not favor any one side or other. If the media house are financially dependent on political party or business house, then they may not have the freedom to operate there as or to, right? तो उनको इंडिपेंडेंटली काम करना. अगर वो किसी पे डिपेंडेंट हो गए तो दे विल नॉट प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट? सो देयर अकाउंटेबिलिटी विल बी टुवर्ड दिस पार्टी. तो अगर वो किसी पे डिपेंडेंट हो गए फाइनेंशियली, तो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी तरफ बढ़ जाएगी चिल्ड्रन? इट विल बी टुवर्ड्स द पार्टी एंड नॉट टुवर्ड्स द पब्लिक. So this can hamper the media responsibility towards the society, right children? So and this is the hot question children. This question you are not going to note down in your fair notebook. Only these are the 4 questions, 2 short answers and 2 long answers, and book exercises, right? Objective question. This much you are going to note down. So children, just wait for a while.
Yes. So children, have you understood? So children, today we have completed the entire chapter. We have discussed the whole chapter, right? The two topics we have discussed in our previous class and two topics we have discussed in today's class. Right children? Now what is your responsibility? Children, you will read this chapter one or two times and that flow chart which I have shown you, that as well as the question answers and book exercises I will share in your WhatsApp group. From there you can note down in your fair notebook. Okay children, bye. Take care. Have a good day.